Okay, I'm gonna start today's class with this class activity. The class activity that you are viewing on your screen. Um, Let me read the statement so that we could have enough information about it. Mr. Osama bin Masood Qureshi has received rupees 36 as his pocket money. Okay. We have income in the form of 36 rupees. Let me write it over here. Income equals I equals rupees 36. Okay. Then we have um, his pocket money from his father for the month of May 2020 to consume on two goods such as Zest Burger and French fries. The price for Zest Burger is 4.5 rupees per burger. It's very cheap era. We have such low prices of products into the economy. Since this is a hypothetical example, therefore you could buy burger into any price. So price of Zest Burger we have in future we'll represent Zest Burger's prices PZB, right? Maybe you could take it in the subscript. Okay. So price of Zest Burger is equals to 4.5 rupees per burger. Okay. And then we have price of, okay, hang on a second. It's computer. Price of French fries. Price of fries is 4.5 rupees per packet. The marginal utilities derived from the consumption of both goods are given as under. Okay. So initially, after reading the statement, we have come to the conclusion that we are given income of the consumer equals 36 rupees. Price of Zest Burger we are given, okay, price of Zest Burger we are given 4.5 rupees per packet, and price of French fries we are given 4.5 rupees per packet. Okay, and we are also given some of the information related to total utilities of Zest Burger and marginal utilities of Zest Burger. And within this table, you could see that there are some blank cells. Those blank cells basically guide us that these are the values that we need to find out by ourselves by using formula of total utility and formula of marginal utility. So I'm putting question marks upon the blank cells in order to confirm that the points where question mark is given, we have to find out the values of such question marks. We have to look for the answers for such question marks. Got my point? Okay, this is completed now. Okay, so we can see that within the column number 2 we have 1 2 3 4 and 5. We have 5 question marks. We have to find out the values of 5 cells within column number 2.
1 2 3 4 5 5 for column number 3, 2 4 6 7 7 for column number 4, and 4 values for column number 5. So we will be finding out the missing information by using the formulas to complete the table. Let us start the answer for this class activity. We have plenty of questions asked over here in order to answer. So the first question says that how could the consumer complete the table of total and marginal utilities of both commodities? So we will be using some formulas in order to complete the table, in order to find out the missing values. Then I'll be moving to the question number 2, 3, and 4. I'm sorry. Okay. So the class activity will be handled by using different steps. In the last activity, I did not provided step for question number 2, but within this class activity, I'm gonna mention all the steps that will basically help us to answer all the 4 questions. The first step will guide us that how we will be finding out the missing values. We have the formula of total utility. It is written over here that total utility of Zest Burger within bracket n represents that uh, uh, any current point wherever we would like to find out the value. Okay. Right after this, so total utility of Zest Burger within bracket n equals total utility of Zest Burger. Whatever the current value n is, we will have to go one step behind to find out the value of total utility of Zest Burger at n-1 information, plus marginal utility of Zest Burger within bracket n, the current value of marginal utility of Zest Burger. From current, we mean the point where we are taking the total utility of Zest Burger. Along with it, we will have to take up the marginal utility of Zest Burger at the current point. So the point is we have to find out the value of Zest Burger at current point, but we will be given the marginal utility of Zest Burger at current point. तो आसान वर्ड्स में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर करंट पॉइंट पर गिवन होगी, तो करंट पॉइंट पर गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर को यूज करके करंट वैल्यू टोटल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर की फाइंड आउट करनी है. फॉर इंस्टेंस करंट पॉइंट है 1, तो 1 पर यानी when we are gonna consume 1 unit of total utility, I mean zest burger, तो इस पॉइंट पर हमें टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी होगी जेस्ट बर्गर की, बट वी विल बी गिवन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर एट 1 यूनिट ऑफ जेस्ट बर्गर. तो जब हमने एन इज्यूम कर लिया कि 1 है, तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर की फर्स्ट यूनिट पर गिवन होगी और हमने टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी होगी. और इसके अदर वे राउंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें टोटल यूटिलिटी गिवन हो करंट पॉइंट पर और प्रीवियस पॉइंट पर, तो उन दोनों के डिफरेंस से करंट पॉइंट की मार्जिनल यूटिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे पास फर्स्ट रो में गिवन है और ये मैं ऑलरेडी अर्लियर लेक्चर्स के अंदर इन फॉर्मूलाज पर डिटेल्ड गपशप लगा चुका हूं. ओके, स्टेप 1 में बेसिकली हम टेबल कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी टू द चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड, एनी गुड, लाइक ये कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जी, जेस्ट बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कुछ भी हो सकती है. तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी किसके इक्वल होगी? टोटल यूटिलिटी की करंट वैल्यू माइनस टोटल यूटिलिटी की प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो करंट यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, माइनस एक स्टेप पीछे वाला जो यूनिट है करंट से.
तो वो आ गया। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास होगा डिफरेंस करंट और प्रीवियस टोटल यूटिलिटीज का, और डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा यूनिट्स ऑफ गुड कंज्यूम्ड, करंट और प्रीवियस का डिफरेंस। ठीक हो गई बात। अब स्टेप 2 में हम जब देखेंगे तो स्टेप 2 में क्या है, in the step 2 the relationship between total utility of zest burger and marginal utility of zest burger will be explained, and total utility of french fries and marginal utility of french fries will be explained or discussed. So स्टेप 2 में बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है, अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्वेश्चंस पर लेकर जाऊं, तो मैंने जिस क्वेश्चन को हाईलाइट किया है, यू कुड रीड इट clearly that how could he interpret the relationship between total utility and marginal utility of both goods. जो करंट टेबल हमारे पास आएगा, जिस मिसिंग इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद हम रीड करेंगे, उसी टेबल से हमने टोटल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, और साथ उसका ग्राफ जनरेट करना है। इसी तरह टोटल यूटिलिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइज एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइज ऑफ बोथ गुड्स, total utility of French fries and marginal utility of French fries, इनके रिलेशनशिप को डिस्कस भी करना है और इनसे रिलेटेड हमने ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सो बेसिकली यहाँ पर दो दफा रिलेशनशिप डिस्कस होगा। आप चाहें तो एक दफा एक्सप्लेन करके एक ही टेबल के अंदर या एक ही पैराग्राफ के अंदर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप पहले जेस्ट बर्गर और जेस्ट बर्गर के केस में टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप बता दें, फिर फ्रेंच फ्राइज में बता दें। जब टोटल का बताएंगे तो उसके साथ जेस्ट बर्गर का बताएंगे तो उसका ग्राफ आप ड्रॉ कर दीजिएगा टोटल और मार्जिनल का। इसी तरह फ्रेंच फ्राइजेस का जब रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के केस में, तो फिर उनका भी ग्राफ आप अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकते हैं। और मैं ऑलरेडी आपको जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में सर्कुलेट कर चुका हूं, उसके पेज नंबर 2 पर आपको ग्राफ नजर आएगा। एग्जैक्टली आपने सिर्फ वहां एक्स और वाई को रिप्लेस कर देना है जेस्ट बर्गर और फ्रेंच फ्राइजेस के साथ। अच्छा जी, अब आ जाए जी स्टेप 2 पर, step 3 पर। in the step 3 the additional columns will be generated. स्टेप 1 में टेबल कंप्लीट होना है, स्टेप 3 में एडिशनल 2 कॉलम्स जनरेट होंगे, और वो कॉलम्स क्या बताएंगे कि हमने क्या कैसे जनरेट करना है, बाय डिवाइडिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स ऑन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्राइसेस। तो जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी होगी जेस्ट बर्गर की, we will be dividing it on its price. तो it will become marginal utility of zest burger divided by price of zest burger. इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइजेस को भी इसकी प्राइस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 4 में हम क्या करने जा रहे हैं, we will generate another table showing the entire procedure via which we will spend our income. बैलेंस इनकम बेसिकली वो यासीन का क्वेश्चन था कि सर लेफ्ट इनकम नहीं समझ आ रही, सो बैलेंस इनकम इक्वल्स लेफ्ट इनकम, रिमेनिंग इनकम। फिर उसके बाद हम एक कॉलम जनरेट करेंगे जिसमें बताएंगे हमने गुड्स जो परचेज कर ली हैं और किस क्राइटेरिया पे की हैं। देन एक कॉलम जनरेट करेंगे टेबल का जिसमें मेंशन्ड होगा यूटिलिटी ड्राइव्ड, एंड ऑल्सो उसमें हम ये भी बताएंगे कि टोटल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड क्या है, यानी सेपरेटली जेस्ट बर्गर से कितनी यूटिलिटी मिली और उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी बनती है जेस्ट बर्गर से। इसी तरह फ्रेंच फ्राइजेस से कितने यूनिट्स उसके परचेज किए, हर यूनिट पे यूटिलिटी क्या है और उसकी टोटल यूटिलिटी क्या बनती है। अच्छा, जब ये टेबल जनरेट हो जाएगा उसके बाद स्टेप 5 हमारे पास आएगा। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, वी विल डिफाइन ऑप्टिमम कमोडिटी कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, हाउ कुड द कंज्यूमर लाइक ही फाइंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कमोडिटीज दैट सेटिस्फाई मिस्टर उसामा बिन मसूद कुरैशी द मोस्ट, दिस इज द क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड हैंडलिंग स्टेप नंबर 4 and 5। तो स्टेप 5 उस वक्त तक नहीं आ सकता आपके पास जब तक आपके पास स्टेप 4 सॉल्व ना हुआ। तो स्टेप 5 में आप ऑप्टिमम कमोडिटी कॉम्बिनेशन सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज दैट, एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल बी आइडेंटिफाइंग that these units of
Zest Burger and these units of French fries combinedly help us in order to extract maximum utility. The reason behind it that it has satisfied multiple conditions, right? तो step 5 accordingly handle होगा और उसके बाद step 6 we will discuss how the maximum utility is calculated and what is the maximum utility and what the maximum utility is. तो basically question number 4 जो है what is the maximum utility that he is going to face at the optimum commodity combination. तो basically हमने आखिरी question में इस बात को स्टेप 6 जो है जिसमें हम मैक्सिमम यूटिलिटी को डिफाइन भी करेंगे और उसका प्रोसीजर भी गाइड करेंगे कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर करना है. तो क्वेश्चन 4 इज अबाउट फाइंडिंग मैक्सिमम यूटिलिटी at optimum commodity combination. Let me answer question number A like question number 1. और question number 1 क्या है जी कि आपने यानी step 1 कह लें आप इसको, यहां मैं लिख देता हूं जी step 1 के जरिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर करने जा रहे हैं. कंप्लीटिंग टेबल बाय फिलिंग द मिसिंग इंफॉर्मेशन. अभी मैंने प्रीवियस टेबल में मेंशन किया लाइक प्रीवियस स्लाइड प्रीवियस पेज पर कि ये हमारे पास टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, तो अब आप देखें TU-ZB विद इन ब्रैकेट है n-1 यानी टोटल यूटिलिटी की प्रीवियस वैल्यू, मार्जिनल की करंट. तो अब ये स्क्रीन पर मैं आपके सामने ये है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया 0, ये है प्रीवियस वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी. ठीक है, और यहां हमारे पास करंट वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी गिवन है 63, यानी 0 पर भी टोटल यूटिलिटी गिवन है, फर्स्ट यूनिट पे भी गिवन है. इसका मतलब क्या है कि यहां हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, वो है मार्जिनल यूटिलिटी. तो हमारे पास करंट वैल्यू है लेट n इक्वल्स 1. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर का फॉर्मूला है द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी टू द चेंज इन जेस्ट बर्गर. तो पहले यूनिट पे आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर एट फर्स्ट पॉइंट माइनस total utility of Zest Burger at previous point divided by current unit of Zest Burger minus previous unit of Zest Burger. तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. अच्छा, टोटल यूटिलिटी करंट पॉइंट पे है जी 63, प्रीवियस पॉइंट पे है 0, और इसके अलावा जेस्ट बर्गर का करंट यूनिट है 1 और प्रीवियस यूनिट है 0, इक्वल्स 63 न्यूमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 1. तो 63 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 63. तो मार्जिनल यूटिलिटी की फर्स्ट पॉइंट पर जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 63 है. अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल यूटिलिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइज की पहले यूनिट पर मैंने कैलकुलेट करके मेंशन की हुई है, ये एक्चुअली गिवन नहीं थी. तो प्रीवियस वैल्यू गिवन थी 0 और मार्जिनल यूटिलिटी की करंट वैल्यू गिवन थी. तो मैंने 0 वैल्यू में मार्जिनल यूटिलिटी की करंट वैल्यू ऐड कर दी, तो मेरे पास टोटल यूटिलिटी की करंट वैल्यू आ गई. तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, टोटल यूटिलिटी की प्रीवियस वैल्यू और मार्जिनल यूटिलिटी की फ्रेंच फ्राइजेस की करंट वैल्यू. तो करंट हमारे पास क्या है जी 1, ये मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट कर दिया है, लेट n इक्वल्स 1. तो अब आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइजेस एट प्रीवियस यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइजेस एट करंट यूनिट. प्रीवियस पे थी 0, करंट पे थी 21, और आप आंसर देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइजेस का क्या आ गया करंट पॉइंट पे 21. ये स्क्रीन पर विजिबल है आपको, ठीक होगी बात. इसके अलावा अब ये आप जहन में फॉर्मूला रखें और ये टेबल को आप जरा गौर से देखें कि सबसे पहले हमने मार्जिन अच्छा, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर की 0 यूनिट कंज्यूम पे वैल्यू गिवन नहीं है. जब डेफिनेटली हम जेस्ट बर्गर का 0 यूनिट कंज्यूम करेंगे टोटल यूटिलिटी शुड बी 0. ये मैंने क्वेश्चन मार्क को ग्रीन से हाईलाइट कर दिया जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है.
अच्छा, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू नहीं गिवन है, फॉर्मूला आपने यूज करना है, मैं डायरेक्टली वैल्यू निकालने लगा हूं 63 माइनस 0। ठीक है जी, 63 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, आंसर इज 63 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स 63। ये आंसर आ गया मेरे पास। ठीक होगी बात। इसी तरह इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है। अब ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। और वैल्यू क्या होनी चाहिए जी, यहां पर टोटल यूटिलिटी की प्रीवियस वैल्यू, वो क्या है जी 63 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी की करंट वैल्यू क्या है जी 56 इक्वल्स, हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 63 प्लस 56, आंसर बिकम्स 119 आई गेस, 119 यस। तो आप देख सकते हैं ये भी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद आप मार्जिनल की ये वैल्यू देखना चाहते हैं, तो क्या डिफरेंस है जी, इक्वल्स 164 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इक्वल्स, तो 164 माइनस 119, द डिफरेंस इज आई गेस 45 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, आंसर क्या आ गया जी 1। तो आंसर क्या आ गया जी 45। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। अब मैं इससे आगे जो टेबल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया होगा, चूंकि मैं ईमेल कर चुका हूं। तो ये दो वैल्यूज मैंने मार्जिनल यूटिलिटी की कैलकुलेट की हैं, और एक वैल्यू मैंने टोटल यूटिलिटी की, और यहां पे भी मैं इसको फाइंड आउट कर देता हूं जी, ताकि दो दो वैल्यूज हो जाए। इक्वल्स 164 प्रीवियस वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी प्लस करंट वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो 164 प्लस 36 इक्वल्स 200 आई गेस। ले जी, ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं आप में से एक पार्टिसिपेंट को अनम्यूट करने लगा हूं, जैसा कि हमजा ने हैंड रेज कर दिया है। जी हमजा, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें। नो सर। ओके एक्सीलेंट। अब इसके बाद मेरी सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप ये बाकी तमाम जिधर क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये सारा टेबल कंप्लीट कर लें। मैं भी कंप्लीट कर लेता हूं, और मैं 2 मिनट सर शायद 2 मिनट के बाद सर आपके जो पास। आपने नीचे सॉल्व किया है शायद वहां आपने 209 लिखा हुआ है शायद, ओके, टोटल यूनिट यूटिलिटी ऑफ बर्गर। मैं अभी उसको चेक कर लेता यस सर, ये 4 यूनिट में हूं। क्या लिखा हुआ? 209 लिखा हुआ है जबकि 200 आता है। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर योर हेल्प। 164 plus 36 equals 200, 27, 18, 245, 54, 54, 45, 27। ठीक हो गया। अच्छा जी, सभी पार्टिसिपेंट्स इसको क्विकली कंप्लीट कर लें, मैं भी यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि जल्दी से वैल्यूज टैली कर लें फिर। सर मेरा ये तो कंप्लीट है, स्टेप 1 और बस स्टेप 2। सब सब कर लेना, मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने किया तो हुआ है, लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो यहीं पे क्लियर हो ओके जाए। सर। 45, ओके ये वैल्यू हमने फाइंड आउट अभी करनी है जी। ये भी वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम है, पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके जी, 27 माइनस 30,
627. अच्छा जी, जी पार्टिसिपेंट, ये जितनी वैल्यूज मैंने फाइंड आउट की हैं इनमें कोई इशू है तो प्लीज बता दें। जी पार्टिसिपेंट्स, जी रऊफ साहब, यहाँ तक कोई इशू है तो प्लीज बताएं। अगर किसी पार्टिसिपेंट की कोई क्यूरी है यहाँ तक, प्लीज रेज योर हैंड। जी अबूजर प्लीज। सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर का जो 6 यूनिट वाला आपने लिखा हुआ है ना, जी जी 18 डिवाइड बाय 1 माइनस 18, सर वो उसका 18 है मेरे ख्याल से। हाँ जी 18 ही है, वो पेस्ट हो गया उधर। ठीक है, बस यही थी। तो मुझे कुछ एक बात के लिए कब तक एक्सप्लॉइट करोगी? तो एक बात सारी जिंदगी के लिए काफी। हाँ ठीक है, जाओ बताओ, आगे थी वो मुझे पसंद और तुमसे तो वो अब्दुल रऊफ साहब क्या देख रहे हैं आप? अब्दुल रऊफ, कमाल कर दिया आपका तो। ये मसाइल हैं। बच्चे क्लास में आके क्लास में नहीं होते और अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, और हर क्लास की इब्तदा में आके कहते हैं इधर हमें प्रॉब्लम है, इधर हमें प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे इरिटेशन होती है। अच्छा जी सर, मैं अब बाकी मिसिंग वैल्यूज जो हैं ये छोड़ रहा हूँ आप पर, चूंकि अब आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए और खुद ही वैल्यूज ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं ये बॉटम पर जो मैंने खुद वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हुई हैं वहां से आपको दिखाता हूँ।
अगर कोई मिस्टेक यहाँ पे है तो प्लीज जरा उसको करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं एक दो बच्चों को अब अनम्यूट करने लगा हूँ ताकि हम जरा अच्छे तरीके से चलते रहें और मेरे साथ बच्चे वैल्यूज टैली करते रहें। कोई से एक स्टूडेंट मेल में से हैंड रेज कर ले और एक फीमेल में से, ताकि दोनों की रिप्रेजेंटेशन हो जाए और हम जिन्होंने ये एक्टिविटी की हुई है। अच्छा, फीमेल साइड से मेरे पास आ गई मिस आफिया और मेल साइड से आ गए यासीन साहब। ओके जी यासीन साहब, आप लोगों ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है ना? यस सर। ओके, अब जरा ये वैल्यूज मेरे साथ टैली करें और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी नोट करते जाएं और देखते जाएं और टैली करते जाएं कहाँ कहाँ वैल्यूज मिसिंग हैं और यहाँ मैच हो रही हैं या मिस मैच हो रही है। जहां मैच हो रही है उसको टिक करते जाएं, जहां मिस मैच है वहां आप बेशक करेक्ट कर लें, या मुझे बता दें, मैं फिर इंशाल्लाह उसको करेक्ट कर लें। सर यहाँ तक सारी मैच हो रही हैं, ठीक है बिल्कुल। ये 119, 164, 200, 227, 245, 254, 254, 245, 245 227, to यहाँ 27. तक टोटल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर की जितनी वैल्यूज है ये मैच हो रही हैं। Yes sir. Yes, sir. Excellent. What about marginal utility of Zest Burger? Starting from 63, then reaches to 56, then 45, 36, 27, 18, 9, 0, minus 9, minus 18. Up till here, Yes, sir. okay, it's Yes correct? sir. Same. Okay, excellent. Yes sir. Let's move to total utility of fries. First value is 0, then reaches to 21, then increase to 39, then 54, 66, 75, 81, 84, 84, then falls to 81 and then to 75. 75. जी, यहाँ तक Yes sir, ठीक है। जी यासीन साहब। बिल्कुल सेम है सर। Okay, marginal utility of fries starting from 21, then reach to 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, minus 3 and minus 6. जी Yes मैथ sir, Same है सर। ठीक है। एक्सेलेंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया जी, कंप्लीट द टेबल बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज, राइट? Yes sir. अच्छा, अब स्टेप 2 था जी, इंटरप्रेट करें आप या एक्सप्लेन करें रिलेशनशिप को जो जेस्ट बर्गर और मार्जिनल यूटिलिटी की, आई मीन जेस्ट बर्गर की टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान है। तो रिलेशन एग्जैक्टली वही है कि आप देखें, हम जेस्ट बर्गर के यूनिट्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूम करना, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी जैसे जैसे हम जेस्ट बर्गर के यूनिट्स इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जेस्ट बर्गर से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 63 से फॉल करके 56 होती है, फिर 45, 36, 27, 18 एंड देन 9। तो ये 63 से 9 तक आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यानी कहां तक ग्रेटर देन 0 है? यूनिट नंबर 7 तक। तो जेस्ट बर्गर के यूनिट नंबर 7 तक मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स ग्रेटर देन 0। तो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 254। तो आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी जहां मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 9, it is greater than 0, and here total utility is continuously increasing and it has reached to 254 and consumer is using 7 units of zest burger. ये हो गया point number 1. When consumer reaches to unit number 8, the marginal utility becomes 0 and total utility has reached to maximum, which is 254. When consumer starts increasing units from 8 and reaches to 9 unit of Zest Burger, his marginal utility derived from Zest Burger becomes negative, becomes less than 0, or it becomes minus 9. Therefore, total utility has started decreasing from 254 to 245 and so on. ठीक होगी बात? यानी अगर 10th यूनिट भी कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी -9 से फर्दर डिक्रीज करके -18 पर चली जाएगी और टोटल यूटिलिटी फर्दर 245 से डिक्रीज करके 227 पर चली जाएगी। तो आपने ये 3 रिलेशंस यानी 3 फेजेस को एक्सप्लेन कर देना और सिमिलर पैटर्न पर आपने फ्रेंच फ्राइजेस
के रिलेशन को टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सप्लेन कर देना। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें, बोथ ऑफ यू। नो सर। अच्छा, अब आप वैल्यू जरा टैली कर लें। ये 3954 और ये सारी चीजें वैल्यू हो रही है टैली? यस सर, ये मैं सेम। वो खुद ही म्यूट हो गई है, पता नहीं सर। वो म्यूट हो गई थी जी। मैं साफिया खुद ही म्यूट हो गई हैं। यस सर, वो पता नहीं ऐसे हाथ लगे तो स्क्रीन खुद ब खुद म्यूट हो जाती है। नहीं, हाथ लगने से भी है ना जी। मिस रामी फरमाएं। सर मैं ये कह रही हूँ कि आपने बताया कि जीरो से ऊपर इंक्रीज हो रही थी कंटिन्यूअसली, जीरो के बाद वो नेगेटिव में जा रही है। इसके बाद आपने एक पॉइंट बताया लास्ट में, वो बता दें प्लीज। जीरो से ऊपर इंक्रीज नहीं हो रही, जीरो तक डिक्रीज हो रही है। जीरो से पहले तक डिक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आपने ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना। मार्जिनल जो है वो इंक्रीज हो रही है और टोटल डिक्रीज हो रही है। नहीं मोहतरमा, उल्टा मार्जिनल बोल दिया। यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर डिक्रीज हो रही है, जबकि टोटल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर मुसलसल इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ओके सर। जरा गौर से देखिए। सारी रात हम हीर रांझा का किस्सा डिस्कस करते रहे, तो सुबह जब बंदा जागता है ना तो फिर पूछता है कि हीर जो था वो मेल था या फीमेल थी। सो कमाल हो गई। सर अगर हमने आपसे नहीं पूछना फिर आप नहीं, बता आप दें, जरूर इतने ज्यादा पूछें। इंटरनेट इश्यूज हैं। आप जरूर पूछें, लेकिन ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन की। ये देखें, मैंने हाईलाइट भी की हुई है यूनिट नंबर 7 तक, आप गौर से देख सकती हैं। मैंने ये अर्ज की, और टेबल में आप जरा देखें, टोटल यूटिलिटी की वैल्यू 0 थी पहले स्टार्ट में। जब आपने 0 यूनिट कंज्यूम किया, मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप देखें 1 यूनिट पर गए तो 63 हुई, फिर 119 हुई, फिर 164, 200, 227, 245, 254। यहां तक आप देख सकते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू देखें, 63 से 56, 45, 36, 27, 18 एंड देन रीचेस टू 9। तो 63 से मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज ऑब्जर्व करें, वो कंटिन्यूसली फॉल कर रही हैं। आप जरूर मेरे से पूछें, लेकिन ये टेबल के सामने आप मतलब क्लियरली देख सकती हैं, वो 63 से वैल्यू 9 तक फॉल कर रही है। और टोटल यूटिलिटी की वैल्यू 63 से ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो इंक्रीज करके 254 पे आ रही है। तो टोटल यूटिलिटी का कॉलम इंक्रीज कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम फॉल कर रहा है। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी के 3 फेजेस थे। पहला 0 से ग्रेटर, दूसरा 0, और तीसरा फेज था लेस देन 0। ठीक हो गई बात? ये बात मैं एक्सप्लेन कर रहा था, और उसी पे मुझे ये बाकी 2 रिप्रेजेंटेटिव्स जो मैंने लिए थे, इन्होंने ओके कहा। आपने एक्चुअली हैंड रेज किया, तो मैंने इसीलिए आपको अनम्यूट करके पूछना चाहा, शायद कोई इंपॉर्टेंट बात है जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें। नो सर, थैंक यू। नो सर। यहां तक क्लियर है? अब ये बैकग्राउंड में आलू वाला भी आ गया। 50 रुपए केजी थे कल तक, तो आज पता नहीं क्या चीज। अच्छा जी, इसके अलावा ये टेबल नंबर 1 हमारा प्लीज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ रिलेशनशिप में एक्सप्लेन कर रहा था, और मैंने अर्ज की कि आपने टोटल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर और फ्रेंच फ्राइजेस के रिलेशन को एक्सप्लेन करना है। यहाँ मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन की है, ये है जेनेरिक इंफॉर्मेशन। इसको स्पेसिफिक आपने करना है टेबल के पर्सपेक्टिव में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब आप जेस्ट बर्गर के 7 यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो 7 यूनिट तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर रहेगी 9, जबकि टोटल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर विल रिमेन 254। और जब आप 8वां यूनिट कंज्यूम करेंगे जेस्ट बर्गर का, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी 254 ही रहेगी। और अगर आप 9वां और 10वां यूनिट कंज्यूम करेंगे जेस्ट बर्गर का, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 से फॉल करके -9 एंड -18 हो जाएगी, जबकि टोटल यूटिलिटी फॉल करके 245 एंड 227 तक चली जाएगी। तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, मैं जर्नल इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, when any consumer goes on increasing the units of one good, say units of good X, then marginal utility extracted from good X at each unit consumed will keep on decreasing.
or will keep on decrease in such a way that initially it will remain greater than zero. वो जो मैंने कही अभी marginal utility of zest burger 7वें यूनिट ऑफ zest burger तक कितनी रहेगी जी, टिल 9, 63 से फॉल करके कहां तक आ जाएगी, 9 तक, ठीक है। तो पहले इट विल रिमेन ग्रेटर देन जीरो, दूसरा केस क्या है जी, देन इट विल बिकम जीरो, यानी 8वें यूनिट पे वो जीरो हो जाती है, एंड फाइनली इट विल बिकम नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। और फिर जीरो के बाद जैसे ही 9 और 10वां यूनिट जेस्ट बर्गर का कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर क्या हो जाएगी जी, -9 और -8। मोर ओवर, अब आपने इन 3 फेजेस को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है कि जी द सिचुएशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स ग्रेटर देन जीरो, in this situation total utility derived from the consumption of good X will always increase. अब देखें मार्जिनल यूटिलिटी 63 से फॉल करके 9 तक आई, टोटल यूटिलिटी की वैल्यू आप 0 से इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं और 254 तक वो मुसलसल इंक्रीज हो गई। ये पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, द सिचुएशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू 0। जेस्ट बर्गर के केस में आप 8वें यूनिट पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो आपने एग्जांपल सॉल्व की होगी, ये देखें, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है जी। 8वें यूनिट पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जेस्ट बर्गर के केस में मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई और टोटल यूटिलिटी क्या हो गई जी, 250। अच्छा, यहां आप देखें जरा पॉइंट नंबर 2, दिस सिचुएशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू 0, इन दिस सिचुएशन total utility derived from the consumption of good X will become maximum. Or point number 3, the situation where marginal utility turns to negative or becomes less than 0. In this situation total utility derived from the consumption of good X will always decrease. यानी तीसरा केस क्या है जी, यूनिट नंबर 9 और 10 पे आप देख सकते हैं, जिसको मैं ग्रीन शेड से हाईलाइट कर रहा हूं जेस्ट बर्गर के केस, या थोड़ा सा ब्लू शेड कर लेते हैं। तो अब आप देखें मार्जिनल यूटिलिटी जेस्ट बर्गर की -9 -18 हुई, तो ये पॉइंट नंबर 2 है जी। इसमें आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी 254 से फॉल करके 245 एंड 227 हो गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें जी। अबू सर प्लीज। नो सर। सर माइक ऑफ करवा दें यासीन का, बार बार आवाज आ रही, सही समझ नहीं आ रही। फिर यासीन के माइक से आ रही है जी, यासीन ने खुद ही म्यूट कर लिया। अब मुझे कौन बताएगा हाँ जी ठीक है कि नहीं ठीक है। सर समझ तो आ रही थी लेकिन यासीन का चले ठीक हो गई अबू सर, ओके नो प्रॉब्लम जी। मिस आफिया। जी सर, वो मैं म्यूट हो गई थी। अच्छा जी। अच्छा, अब इसके बाद मैंने रिलेशन एक्सप्लेन कर दिया, मैं जा रहा हूँ स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में बेसिकली हमने क्या करना है, ये टेबल एक जनरेट करना है। एक मिनट जी।
ओके जी, स्टेप 3 मेरे पास आ गया जी। अच्छा जी, स्क्रीन विजिबल है आपके पास? यस सर। ओके शाहजेब, मैं अभी आपसे यार बात करता हूँ, मुझे जरा 2 मिनट दे दो। ओके जी, स्टेप 3 में सबसे पहले मुझे देखना है, मेरे पास इनकम जो है वो गिवन है 36। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ जी। जो ये स्टेटमेंट में मेरे पास थी, इनकम आ गई। आप चाहें तो इसी टेबल के साथ 2 फर्दर कॉलम जनरेट कर सकते हैं यहाँ भी, ठीक है। आपने क्या करना है, यही 2 कॉलम जनरेट करेंगे और सर मैंने इसी के साथ दो करके वो हाँ जी डिवाइड किया हुआ है मार्जिनल जी यूटिलिटी कोई को मसला प्राइजेस नहीं, के आप साथ। यहाँ, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसीलिए वो आगे टेबल के साथ जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है स्पेस चूंकि नहीं थी, मैंने अगले टेबल के साथ उसको कंबाइंड करके, और इस, अच्छा अगर पहले बने हुए हैं ना, तो यहाँ वो 2 कॉलम जरूर मेंशन करने हैं, ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो जाए। मैं अब यहाँ पे असल में ना ये कॉलम्स मेरे पास ज्यादा बड़े बने हुए हैं, मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ ताकि चले। ले जी, ये पोजीशन मेरे पास बन गई है। ये आ गया जी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ जेस्ट बर्गर। इसी पैटर्न से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइजेस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फ्रेंच फ्राइजेस। अच्छा जी, पहले यूनिट्स पर तो वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो सकती, नेक्स्ट पर आप देखें, आखिरी 2 कॉलम जो हमने जनरेट किए, इक्वल्स, कॉलम नंबर 3 में वैल्यू क्या है जी 63 डिवाइडेड बाय प्राइस 4.5। क्विकली जरा मुझे आंसर बताते जाए। इक्वल्स इसका जी 21 डिवाइडेड बाय 4.5 इक्वल्स, इसका क्या आंसर आया जी, और इसका आंसर क्या आया जी, इसका गालिबन आंसर है 18, कितना है 14, और इसका जी 4.67 आई गेस। आप चेक कर सकते हैं इसको डिवाइड करके, मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ जी। मैं यहाँ से वैल्यूज आपको अब बताता जाता हूँ। ये है मेरे पास वैल्यूज, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। आपने सेम पैटर्न पर ये करने के बाद यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल्स
56 डिवाइडेड बाय 4.5। यहाँ क्या होगा जी? इक्वल्स 18 डिवाइडेड बाय 4.5। ठीक होगी बात? तो अब चूंकि मैंने कॉपी कर लिया है, यहां से मैं अब कर लेता हूं। ले जी, ये मैं वैल्यूज यहाँ पेस्ट कर रहा हूं। ये वैल्यूज आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है जी 12 पॉइंट, कितनी थी जी? 12.44, जबकि इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई जी 4। और बाकी सबकी वैल्यूज भी अकॉर्डिंगली आ गई जी। यहाँ तक अगर कोई जी में साफिया आपने टेबल किया है, बताएं जरा। जी सर, वो मैंने कहना था बाकी सारी वैल्यूज मेरी सेम है, तो ये जो 0.67 है इसको मैंने 0.66 किया था, मतलब मैंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, तो इससे फर्क तो नहीं पड़ता ना? ये 0.667 है ना, तो आप से जी कर ले, करना चाहे कर ले, नहीं सर, ये करना। देखें, राउंड अप या राउंड डाउन वाला प्रोसीजर तो हमने D1 मैथ्स में पढ़ा होगा, तो बस आपने कर लेना है, यस सर, कोशिश कीजिएगा कर लीजिएगा। ठीक है सर। अच्छा, ना ओके भी सर, करेंगे बाकी तब भी सारी कोई तो सेम प्रॉब्लम है। नहीं है, अनलेस के हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इग्नोर कर देंगे इसको। अच्छा, अब इसके बाद ये मार्जिनल यूटिलिटीज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, प्रोसीजर ऊपर टॉप पे मेंशन्ड है कि कैसे फाइंड आउट की हैं, ठीक है। तो इनको आपने इसी पैटर्न पर फाइंड आउट करना है। ये सोल्यूशन मैं होपफुली आपको ईमेल कर दूंगा। अब जब मैं स्टेप 2 कंप्लीट कर चुकूं, फिर स्टेप 3 पे जाऊंगा। स्टेप 3 में मैंने एक एडिशनल टेबल मैंने कहा मैंने जनरेट करना है, और एडिशनल टेबल जब मैं जनरेट करूंगा उसमें सबसे पहले मैंने 2 कॉलम्स बनाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ जेस्ट बर्गर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फ्रेंच फ्राइज। ये कॉलम्स मेरे पास आ गए 2, ये कैलकुलेट हुए में। अगला स्टेप जो है, मनी स्पेंट, लेफ्ट इनकम, गुड्स परचेज्ड, यूटिलिटी ड्राइव्ड, और उसके बाद अगले 2 कॉलम्स जो जनरेट किए हैं जी, यूटिलिटी ड्राइव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग जेस्ट बर्गर और आफ्टर कंज्यूमिंग फ्रेंच फ्राइजेस, ये हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। अब देखें, मैं थोड़ी देर के लिए इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से एलिमिनेट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसकी। अच्छा जी, रीड करना आसान हो जाए। अच्छा जी, अब देखें मेरे पास टोटल इनकम है, ये मैंने टॉप पे मेंशन किया जी 36 रुपीज, जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक हो गई बात। अब इन यूटिलिटीज को मैं आपस में देख रहा हूँ 14 एंड 4.67 को। अब मैंने कंपेयर करने के बाद पता चला कि 14 इज रिलेटिवली हायर। यासिन साहब प्लीज रेज योर हैंड, यासिन साहब प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, अब आपने ये क्वेश्चन पूछा था और आप देख लें जरा इसको। यस सर। अब बैकग्राउंड अपना जो है ना, इसको चेक करते रहना। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अबू जर प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। इनका क्वेश्चन था, मैं जरा आंसर इनको कर दूं। मिस रामीन बेटा आप भी जरा प्लीज गौर से, अगर शाहजेब साहब हैं तो प्लीज आप भी देख लें, आपकी भी ईमेल आई हुई थी। अब देखें जरा यहाँ से, और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स, हमजा प्लीज। अच्छा, अब ये आप गौर से देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेस्ट बर्गर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ जेस्ट बर्गर, इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फ्रेंच फ्राइज। ये 2 कॉलम्स हमारे पास आ गए हैं। इन दोनों कॉलम्स में जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इनको हम एज्यूम करेंगे कि ये हर प्रोडक्ट की, यानी जो जेस्ट बर्गर के कॉलम में वैल्यूज हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं जेस्ट बर्गर के हर यूनिट पर मिलने वाली यूटिलिटी। यासीन आपके माइक से शोर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह फ्रेंच फ्राइज के हर यूनिट पर मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फ्रेंच फ्राइज, इनके कॉलम्स में गिवन है।
तो आप कॉलम नंबर 3 में ऑब्जर्व कर सकते हैं जो वैल्यूज गिवन हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं फ्रेंच फ्राइज के हर यूनिट पर मिलने वाली यूटिलिटी को। जो कॉलम नंबर 2 में इंफॉर्मेशन गिवन है ये रिप्रेजेंट कर रही है जेस्ट बर्गर के हर यूनिट पर मिलने वाली यूटिलिटी को। तो जेस्ट बर्गर का पहला यूनिट और फ्रेंच फ्राइज का पहला यूनिट, इन पर मिलने वाली यूटिलिटीज 14 एंड 4.67 रिस्पेक्टिवली हैं। इनको आपस में जब कंपेयर किया तो पता चला 14 इज ग्रेटर देन 4.67। तो अब मुझे किसको बाय करना चाहिए? गुड परचेज सस्ते वाले बाय को। करूं जेस्ट 14 बर्गर को को। ठीक होगी बात? तो जेस्ट बर्गर का कौन सा भी यूनिट मैंने परचेज किया? फर्स्ट वन। फर्स्ट। ठीक होगी बात? कितनी यूटिलिटीज पर मिल रही है मुझे जी? 14। और अभी मैंने परचेज किसको किया जी? जेस्ट बर्गर को। ये 14 यूटिलिटी मैंने लिख दी। मनी मैंने कितनी स्पेंड की इस पर जी? 4.5। मेरे पास ओरिजिनल इनकम कितनी थी जी? 36। इसमें से मैंने 31.5 4.5 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो लेफ्ट इनकम मेरे पास कितनी है जी? 31.5। गॉट माय पॉइंट? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। नो सर, गुड। ठीक होगा। अब इसके बाद देखें, अब मैंने चूंकि जेस्ट बर्गर का ये यूनिट परचेज कर लिया है, ये यहां से हो जाएगा हाईलाइट। मैंने अब इसको चूंकि परचेज कर लिया, मेरी बास्केट में है। जो लेफ्ट इनकम है वो आई मीन लेफ्ट यूनिट्स पर मौजूद यूटिलिटीज जो मुझे मिल सकती हैं वो ये है जिनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब मेरे पास जेस्ट बर्गर के यूनिट नंबर 2 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक परचेज करने की फ्रीडम है। 14 में ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ और वो मेरी यानी जेस्ट बर्गर का फर्स्ट यूनिट परचेज कर चुका हूँ और वो मेरी फूड बास्केट में आ गया। ठीक है, या होम टेक बास्केट में आ गया। अब जबकि फ्रेंच फ्राइजेस के जो यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो 4 यानी यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक मैंने अभी बाय नहीं किए फ्रेंच फ्राइज के केस में, और ये यूनिट्स पर मिलने वाली यूटिलिटीज एज इट इज मार्केट में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि अभी ये मेरी फूड बास्केट का हिस्सा नहीं बनी। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जेस्ट बर्गर का यूनिट नंबर 2, इस पर मिलने वाली यूटिलिटी 12.44, जबकि फ्रेंच फ्राइज के जितने यूनिट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, इनके सारे यूनिट्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और इन पर मिलने वाली यूटिलिटीज अवेलेबल हैं। 12.44 को मैंने 4.67 से अगेन कंपेयर किया, पता चला ये भी ग्रेटर है। पहला भी ग्रेटर था, दूसरा भी ग्रेटर है, तीसरे को चेक करें वो भी ग्रेटर है, चौथे को चेक करें वो भी ग्रेटर है, पांचवें को चेक करें वो भी ग्रेटर है। तो पहले 5 यूनिट्स जो हैं जेस्ट बर्गर के, इन पर आप देख सकते हैं कि जो यूटिलिटीज मिल रही हैं ये सारी की सारी 4.67 से क्या है? ग्रेटर। तो पहले 5 यूनिट्स जो मैं परचेज करूंगा वो किसके होंगे जी? जेस्ट बर्गर के। मैंने इसलिए क्विकली इसको बता दिया क्योंकि पीछे मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं चाह रहा हूं कि 1-2 मिनट के अंदर ना जितनी मेरी डिस्कशन हो गई है इसको कंप्लीट करूं, बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह अगली क्लास में कर लेंगे। तो हमजा आपसे रिक्वेस्ट है, या जो पार्टिसिपेंट्स इसकी अटेंडेंस वगैरह की वीडियो बना लेते हैं वो प्लीज जरा नोट कर लें ताकि अटेंडेंस आपकी हो जाए। नुमान प्लीज आप भी वीडियो लेते होते प्लीज जरा ले लो वीडियो। 1 मिनट मैं बात करता हूँ नुमान आपसे। जेस्ट बर्गर का 3rd यूनिट, फिर जेस्ट बर्गर का 4th यूनिट, फिर जेस्ट बर्गर का 5वां यूनिट। पहले 5 यूनिट के केस में ये वैल्यूज ग्रेटर हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं एग्जैक्टली उसी तरह कॉपी पेस्ट करी जाता हूं और इसको एडिट करी जाता हूं। अच्छा जी, मेरे पास लेफ्ट इनकम थी 31.5, इसमें से मैंने 4.5 स्पेंड किए तो मेरे पास लेफ्ट इनकम रह गई जी 27। फिर 27 में से 4.5 माइनस किए तो मेरे पास लेफ्ट 22.5। फिर मेरे पास लेफ्ट इनकम है जी 22.5, इसमें से मैंने 4.5 माइनस की तो मेरे पास लेफ्ट इनकम है जी 18। फिर 18 में से मैंने 4.5 सब्ट्रैक्ट किए
तो मेरे पास लेफ्ट इनकम 13.5 13.5। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे हमने देखा तो पता चला, अब देखें 5 यूनिट्स मैं परचेज कर चुका हूं जेस्ट बर्गर के और 5 ही रिमेनिंग है, यानी यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक जेस्ट बर्गर के यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल है, जबकि फ्रेंच फ्राइज के भी 10 के 10 यूनिट्स अवेलेबल है। तो अब 4.6 को जब मैंने 4 से कंपेयर किया तो पता चला कि 4.6 जो है इस 4 से जिसको मैंने हाईलाइट किया इससे ग्रेटर है। तो अब मैं किसको परचेज करूंगा? अब मैं फ्रेंच फ्राइज के फर्स्ट यूनिट को परचेज करूंगा जिस पर मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है जी, 4.67, और इस पर मेरे कितने पैसे स्पेंड हुए, 4.5, और अब मेरी लेफ्ट इनकम कितनी थी, 13.5 में से जब 4.5 मैं इस पर स्पेंड कर दूंगा तो मेरे पास लेफ्ट इनकम कितनी रह जाएगी जी, 9। ठीक होगी बात? जस्ट 1 मिनट में ये कंप्लीट हो गया टेबल हमारा, बस 1 मिनट और बियर कर लें प्लीज। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें कि दोनों 4 इक्वल हो गए। जब यूटिलिटीज इक्वलाइज्ड हो जाएं फिर हमारा क्या सोल्यूशन होगा? अब हमारी चॉइस है, जब यूटिलिटीज इक्वलाइज्ड हो जाएं फिर हम देखते थे जिसकी प्राइस चीप हो। अब यहाँ हमारे केस में प्राइसेस दोनों की सेम है, 4.5। तो अब मैं क्या करूं, हमारी चॉइस है, हम जिसको मर्जी बाय कर लें। तो चूंकि जेस्ट बर्गर के यूनिट्स हमारे पास ज्यादा हैं इसलिए मैंने जेस्ट बर्गर को नहीं परचेज कर रहा, फ्रेंच फ्राइज को परचेज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां हमारे पास वैल्यू है जी 9 माइनस 4.5, आंसर आ गया जी 4.5। तो जेस्ट बर्गर का सेकंड यूनिट मेरे पास आ गया। ठीक हो गई बात? और इस पर यूटिलिटी कितनी मिल रही है जी, 4। और इसके बाद लेफ्ट इनकम चूंकि मेरे पास रह गई है 4.5, तो अब मैंने, आप ये देखें मैंने ये 4 भी परचेज कर लिया। अब इसकी वैल्यू है 3.33 और ये क्या है जी, 4। ये 4 क्या है जी, ग्रेटर 3.33 से। तो अब मैंने किसको परचेज करना है जी, जेस्ट बर्गर को। ठीक होगी बात? तो ये जेस्ट बर्गर का ये भी यूनिट जब मैं परचेज करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट इनकम थी जी 4.5। 4.5 में से 4.5 माइनस किए तो मेरे पास लेफ्ट इनकम आ गई जी 0, नील हो गई। तो अब जेस्ट बर्गर के टोटल यूनिट्स मैंने परचेज कर लिए जी 6, जबकि फ्रेंच फ्राइजेस के मैंने यूनिट्स परचेज किए हैं जी 2। यहां पर आ गया जी 4.67 और 4। ये टोटल यूटिलिटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेस्ट बर्गर आ गई जी 14, 12, 26, 10, 36, 8, 44, 54.44, और ये आ गई जनाब 8.67। ठीक है जी, 54 और 8 64, 62, ये आ गई जी 63 समथिंग आ गई जी, 63.21। ठीक हो गई बात? तो अब देखें जेस्ट बर्गर के 6 यूनिट्स, फ्रेंच फ्राइज के 2 यूनिट्स। ओके जी, मैं अभी अपनी बात यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ और बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह अगली क्लास में करूंगा आपके साथ। ठीक है जी, और इसके अलावा जिन बच्चों के क्वेश्चंस हैं मेरी तरफ ये कंप्लीट हो गया। जिनकी ड्यूटी है लाइक इस तरह की कि वो नोट करते हैं अटेंडेंस, वो प्लीज जरा ये पार्टिसिपेंट्स को नोट कर ले। मेरी तरफ से आज का लेक्चर वाइंड अप हो गया, मैं क्वेश्चन आंसर्स को हैंडल करने लगा। जो पार्टिसिपेंट्स जाना चाहे, नुमान प्लीज जरा वीडियो ले लो, हमजा वीडियो ले लो, ताकि बच्चों ने जिन्होंने जाना है दे कैन लीव। जी, मैं 1 बाय 1 अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, ताकि जिनकी क्यूरीज हैं वो प्लीज डिस्कस कर लें। सर वीडियो तो बना ली है सर अभी। जी जी तो सर काफी पार्टिसिपेंट बाद में मैसेज करते हैं हमें व्हाट्सएप पे कि मेरी अटेंडेंस लगवा दें, सर उसका क्या किया जाए? जो प्रेजेंट है उसकी क्लास में अटेंडेंस मौजूद लगेगी यार। अब जो नहीं आया वो प्लीज ना किया करे रिक्वेस्ट इस तरह की।
तो सर लेकिन आज कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ईमेल के इशू की वजह से नई मीटिंग चले ज्वाइन कर कोई पाए, इशू नहीं है, नेक्स्ट तो क्लास में सर आ उनका जाएंगे। कर दें। एक आध क्लास में अगर कोई मसला नहीं है, प्रेजेंट ना भी लगे तो कोई इशू नहीं होता, आप क्यों परेशान होते हैं इसमें? सर नहीं, एक्चुअली वो ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कोई कि सर मसला से नहीं है, आप उनको हमारा कहें मैसेज। स्टे रिलैक्स्ड, कोई मसला नहीं, इजी हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा एब्सेंटीज नहीं करनी है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें आज के लेक्चर से रिलेटेड। जी शाहजेब काजमी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, शाहजेब प्लीज बताएं। सर ये जो हमने फ्रेंच फ्राइज जब पहला लिया है 5th नंबर पे, वो किस तरह लिया सर? 6-2 से बड़ा नहीं है? मतलब मार्जिन यूटिलिटी जो है जिंगर बर्गर वाली, वो फ्रेंच फ्राइज से ज्यादा नहीं 6-2 किसमें? के निस्बत? कॉलम नंबर 1 और 2 को अगर कंपेयर करें। नहीं, आप 14 और 12 पॉइंट से ऑनवर्ड 6 तक आप देखें ना, पहले 5 यूनिट जेस्ट बर्गर के देखें जरा गौर से, उसमें जेस्ट बर्गर की जो यूटिलिटीज हैं वो सब केसेस में 4.67 से ग्रेटर है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है ना? मतलब हमने ये दूसरे मार्जिनल बीच यूटिलिटी से जिनको कंपेयर करनी है। ये स्क्रीन पे विजिबल है ना, 14 से लेकर 6 तक पहले 5 यूनिट जेस्ट बर्गर के जरा गौर से देखें। 14, जी 12.44, 10, 8, 6 ये सब ग्रेटर है जी किससे? 4.67 से। So ओके we सर। will be buying first 5 units of Zest burger instead of French fries. Why? Because ओके सर। the utilities extracted from each unit of Zest burger is relatively higher than that of the utility extracted from French fries. ठीक होगी यानी बात? कि हमने जो जी फ्रेंच फ्राइज की हाईएस्ट यूटिलिटी होगी उससे कंपेयर करना है। हाँ जी, उस टाइम हाईएस्ट नहीं, फ्रेंच फ्राइजेस के जितने टोटल यूनिट्स अवेलेबल हैं उन सब यूनिट्स में सबसे हाईएस्ट जो है, जो अभी हमने बाय नहीं की, ठीक हो उनके साथ कंपेयर करें। ठीक हो गया। ओके सर, यानी जो वो यहीं मार्केट में से अवेलेबल कंफ्यूज होंगे था। उनके साथ कंपेयर करना आपने। गॉट माय पॉइंट? ओके ओके ठीक हो। ओके, और कोई यस क्वेश्चन है जी? प्लीज बताएं जी, प्लीज जिन जिन के क्वेश्चंस है पूछ लें, मैंने अनम्यूट कर दिया है। सर, वो ये जो 0-0 वाला है इसको हम स्किप भी कर सकते हैं कि नहीं? कि अगर हम नहीं, 0-0 वाले किसी को स्किप नहीं करना, सब साथ रहेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ये जो 8th पॉइंट है जी जी यूनिट्स ऑफ गुड्स का, इसमें मार्जिनल जो है यूटिलिटी यूटिलिटी जेस्ट बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की वो 0 है। जी जी, तो हम लोगों ने फिर भी जेस्ट बर्गर ही परचेज किया है, गुड्स परचेज में 6th पे आया। ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, ऐसा क्यों किया? अच्छा, हम 8वें, पहली बात तो ये है कि 8वें यूनिट तक आपने जाना नहीं है, ठीक होगी बात, उसको देखने की जरूरत नहीं है। जब तक इनकम आपकी 0 नहीं होगी तब तक आप बाइंग स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है? तो हमारी इनकम आप देखते रहे हैं, लेफ्ट इनकम में आप गौर से देखें कॉलम में, हमारे पास जब तक इनकम पॉजिटिव लेफ्ट इनकम में आती रही, हम नेक्स्ट बाइंग करते रहे। और बाइंग का जो तरीकाकार था उसमें हमने यूटिलिटीज को आपस में कंपेयर किया। जिस प्रोडक्ट के जिस यूनिट की यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट के यूनिट की यूटिलिटी से ग्रेटर थी, हमने वो प्रोडक्ट का यूनिट परचेज किया जिसकी यूटिलिटी ग्रेटर थी। जिसकी लेस थी उसको परचेज नहीं किया। तो आप जेस्ट बर्गर के पहले 5 यूनिट्स को देख सकते हैं कि उन पर मिलने वाली यूटिलिटी फ्रेंच फ्राइज के पहले यूनिट से ग्रेटर है 4.67 से। तो लिहाजा पहले 5 यस सर। यूनिट जेस्ट बर्गर के परचेज कर लिए। अच्छा, जो जेस्ट बर्गर का छठा यूनिट है उस पर यूटिलिटी है 4, लेकिन फ्रेंच फ्राइज की पहले यूनिट पर यूटिलिटी है 4.67। तो मैंने जेस्ट बर्गर के छठे यूनिट को परचेज करने के बजाय 5 यूनिट्स के बाद पहला यूनिट किसका परचेज किया? फ्रेंच फ्राइज का। क्यों? क्योंकि फ्रेंच फ्राइज के पहले यूनिट की यूटिलिटी जेस्ट बर्गर के छठे यूनिट की यूटिलिटी से ग्रेटर है 4.67। ओके सर। ठीक है, फिर फ्रेंच फ्राइज। सर अब आगे समझ। ओके, एक्सीलेंट बेटा। और किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सर, ये जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे इसको जरा कंटिन्यू ही रखिएगा, ये जो, क्योंकि आगे उसकी 4 हाँ और जी, 4 नेक्स्ट बराबर आ मैं जाते हैं। अगला पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पर जो यूटिलिटी फ्रेंच फ्राइज की है सेकंड यूनिट की और जेस्ट बर्गर के छठे यूनिट की यूटिलिटी इक्वलाइज्ड हो गई। जब
ऐसी सिचुएशन मेरे पास आ जाए जहां दो प्रोडक्ट्स की यूटिलिटीज आपस में इक्वलाइज्ड हो जाएं, तो फिर ये मेरी चॉइस है कि मैं दोनों में से किसको परचेज करूं। तो फिर प्रायोरिटी ये होती है कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो उसको परचेज कर लिया जाए। अब हमारे इस सिनारियो में दोनों प्रोडक्ट से मिलने वाली प्राइसेस इक्वल हैं, तो अब दोनों प्रोडक्ट से मिलने वाली प्राइसेस जब इक्वल होंगी तो फिर उस केस में हम पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रोडक्ट को परचेज करें। यूटिलिटीज भी इक्वल हो, प्राइसेस भी इक्वल हो, तो ये कंज्यूमर की चॉइस है, उसकी डिस्क्रेशन है कि उसका टेस्ट जिस प्रोडक्ट पे डेवलप हो गया वो परचेज कर ले। अब ऑलरेडी मेरी बास्केट में जेस्ट बर्गर के यूनिट्स ज्यादा थे, फ्रेंच फ्राइजेस के यूनिट्स कम थे, तो मैंने प्रेफर किया कि फ्रेंच फ्राइज का एक यूनिट और आ जाए, तो मैंने फ्रेंच फ्राइज पहले ऐड कर लिया। बाद में फिर मेरे पास मजीद बैलेंस इनकम 4.5 थी पॉकेट में। इनकम जब तक जीरो नहीं होगी मैं बाइंग स्टॉप नहीं करूंगा। तो मैंने मजीद मार्केट में फिर देखा तो मुझे पता चला जेस्ट बर्गर का छठा यूनिट फ्रेंच फ्राइज के तीसरे यूनिट की यूटिलिटी से ग्रेटर है, यानी 4 इज ग्रेटर देन 3.33। तो अब मैंने जेस्ट बर्गर परचेज कर लिया, कौन सा छठा यूनिट उसका, उस पर यूटिलिटी 4 मिल गई मुझे, और अब मेरे पास बैलेंस इनकम जो थी वो जीरो रह गई। अब मेरी बाइंग यहाँ पे स्टॉप हो गई है, ठीक है। और अब मेरे बास्केट के अंदर मैंने देखा टोटल यूनिट जेस्ट बर्गर के कितने हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। 6 यूनिट जेस्ट बर्गर के आगे, फ्रेंच फ्राइज के 2 यूनिट्स आ गए, ठीक है। जेस्ट बर्गर से मुझे यूटिलिटी मिल रही है 54 और फ्रेंच फ्राइजेस से मुझे यूटिलिटी मिल रही है 8.67। क्लियर होगी बात? अगली स्टोरी इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर बस एक ये छोटा सा रह गया। जी जी। तो ये जो अब जिस तरह हमारे जिंगर बर्गर 6 हो गए और फ्रेंच फ्राइज 2 हो गए, तो अगर हम हमारी मर्जी थी तो हम जिंगर बर्गर ले लेते, तो इस तरह एंड पे फर्क नहीं आ जाना था, मतलब वो हो नहीं, जाना कुछ था भी नहीं आना 7-1। था, सिर्फ फर्क ही बैलेंस इनकम ऊपर, अगर जेस्ट बर्गर का छठा यूनिट ऊपर चला जाता वहां ऊपर भी बैलेंस इनकम 4.5 ही रहनी थी, क्योंकि एक्चुअल इनकम थी 9। जेस्ट बर्गर परचेज कर लेते तो लेफ्ट इनकम फिर 4.5 रहनी थी। जब तक इनकम जीरो नहीं होनी तब तक बाइंग स्टॉप नहीं होती। सर इसको कहते हैं कि ये जो आपने ग्रीन अंडरलाइन किया हुआ है ये 6 और 2 वाले को, ये हाँ ऑप्टिमम कमोडिटी वाला है। ये अभी तो हमने यूनिट्स आइडेंटिफाई की हैं, अभी इस पर यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग प्रिंसिपल लगा के चेक करना है हमने। जब तक वो चेक नहीं होगा तब तक ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता कि ये यूनिट्स जेस्ट बर्गर। अभी तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है कि इनकम जीरो हो गई है, और उससे हमने कुछ यूनिट्स जेस्ट बर्गर के खरीदे और कुछ यूनिट्स फ्रेंच फ्राइज के। अब तीसरा स्टेप इसमें ये है कि हमने इस पर यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग प्रिंसिपल अप्लाई करके देखना है कि वो प्रिंसिपल सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो अगली क्लास में होगा। हाँ जी इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। जी ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।